گلشن میں جا کے دیکھ، نہ شہرہ میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث اعظم کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت رسول کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ وسا کے دیکھ۔ تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور، اس دل کو ذوالفقار کا شیدا بنا کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم اور ایک جلیبی والے کا ہے یہ ایمان افروز واقعہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو بہت ہی زیادہ رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ مسجد میں اپنے مرید اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تو اللہ پاک کے عشق اور محبت میں اتنا ڈوب کر عبادت کرتے تو آپ کے صحابہ آپ کی رقت اندازی یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے تو کہتے کہ اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث اعظم کی دیکھی جائے، آپ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ ہیرا کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، اس وقت آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے کیونکہ آپ نے بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کیا۔ آپ ان بچوں کی طرف مسکراتے دیکھ کر آگے بڑھنے لگے اور مریدوں کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ گفتگو کرنی شروع کر دی اور اشارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیا خیال ہے یہ جو بابا سب میں نمایاں ہے، نورانی چمک اور روشن چہرے والے جو یہ سب میں آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے اور جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ کچھ سمجھدار بچے ایک دم بولے کہ نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا یہ بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو سنتے بھی ہیں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم ان سے اپنے من پسند کی چیزوں میں سے چیز منگاتے ہیں جو میٹھی میٹھی بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا کیا آپ میری بات سنیں گے؟ تو آپ نے اس کے سر پر بہت پیار اور شفقت سے ہاتھ رکھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہو۔ اس بچے نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا کیا آپ اس جلیبی والے سے ہمیں جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ بابا میں چلا جاتا لیکن اب میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ اب آپ وہاں کے مشہور بزرگ، بڑے سردار لوگ، آپ کے خادمین لوگ آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے آ کر وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے جلیبی لا کر دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے مرید بھاگ کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کیوں اس کی بات پر دھیان دیتے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی بھی لا رہے ہیں۔ حضرت میری آپ پر جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید نے کہا۔ آپ نے اسے اپنے دست مبارک کے اشارے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس بچے نے مجھ سے ہی کہا ہے نا تو میں ہی اس بچے کی فرمائش پورا کروں گا۔ مریدوں کے بہت اصرار کے بعد بھی آپ جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ کی دکان میں تشریف لاتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے اس سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ کے دست مبارک میں جلیبی دی۔ وہ جلیبی والا لگ بھگ 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوگا۔ وہ بڑھاپے میں بھی کام کرنے پر مجبور تھا۔ آپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے روتے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی، آپ نے اس کی عطا سے میری دکان پر اپنے قدم رکھے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں مگر میں جانتا تھا کہ آپ ایک دن ضرور آئیں گے میری دکان میں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ حضرت عرصہ ہوا کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور یہ کاروبار دن ب دن گھاٹے میں ہی جا رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجھے قرضہ لینا پڑا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ فکر نہیں ہے
मगर मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र है। इस बुढ़ापे में अल्लाह ने मुझे औलाद तो दे दी मगर उनको पालने का मेरे पास कोई जरिया नहीं हो पा रहा था। मैंने इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि मौसिल एक इराक का शहर है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पर कोई फकीर है, उससे दुआ करवाओ और वो जिसके लिए दुआ करे उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था, उस आदमी के कहने पर मैं उस फकीर से मिलने चला गया। मैंने उससे कहा कि बाबा तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और बरकत आ जाए, रिस्क की बड़ी तंगी हो गई है, बीवी बच्चे भी बड़े परेशान है। वो फकीर मुझे देखकर कहने लगा, लगता है तुम पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि को नहीं जानते हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। तो वो कहने लगा तुम पर बहुत हैरत है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि तुम नहीं जानते कि वो वलियों के सरदार हैं? मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ, मेरी दुआ वो असर नहीं रखती। कहा जाता है गौसे आजम जिसके लिए दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि खुद मौजूद है तो हमारा क्या मकाम होगा उनकी दुआ के आगे? हमारी दुआ कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर ये बात है कि आपसे भी बड़ा कोई बुजुर्ग है तो आप मुझे बताइए कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊँ उनसे मिलने? वो कहने लगा कि वो जीलान में है, तुम उधर जाओ, क्योंकि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि के रहते हुए किसको कुदरत है कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे, कि किसी के लिए भी दुआ करे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम अभी मौजूद हैं, जो तुम उनसे कहोगे वो तुम्हें इंशाअल्लाह मिलेगा। हुजूर जब उस फकीर ने ये बात कही तो मैं फौरन झीलान शरीफ आ गया। मैंने हर जगह यहाँ पर आपकी तलाश की, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि आज मेरी दुकान पे आप खुद तशरीफ लाए हुए हैं। आप देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर आप मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे, मुझे अपने बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। आपने फरमाया परेशान होने की कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक सारे मामला ठीक कर देगा। ये कहकर आप बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। इतने में एक और बच्चा आया कि बाबा आपने इसे जलेबी ला कर दी है, आप मुझे भी जलेबी ला कर दे दे। आपने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर आपके मुरीद अब गुस्सा होने लगे और कहने लगे हजरत आपने एक बच्चे के लिए काम कर दिया है ना, आपकी जात बहुत ऊंची है, आप हमें हुक्म दीजिए, हम ये काम इन बच्चों के लिए कर देंगे, हम इन बच्चों को जलेबी ला कर दे देंगे। आपने फरमाया नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं, मैं इन बच्चों का कहा डाल नहीं सकता। हजरत आप बहुत मशरूफ शख्सियत हैं, आप क्यों इन बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने उन्हें फिर हाथ के इशारे से मना किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वो काम कर रहे हैं, तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे हो। फिर वो बच्चे जितनी बार आपको भेजते रहे आप उनके लिए जलेबी लाते रहे, यहाँ तक कि आपने आखिरी बच्चे को भी जलेबी ला कर दे दी। वो मजे से जलेबी खाते रहे। बच्चे बहुत खुश हुए और जलेबी खाने के बाद आपके लिए दुआएं करने लगे और कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना था आप वैसे ही हैं, आपके अखलाक बहुत उम्दा हैं, आपकी सखावत के बारे में हमने सुन रखा था, आप उतने ही सखी हैं, हम आपसे बहुत खुश हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए, बच्चों को खुशी देकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हुआ तो आपने मुरीदीन से फरमाया चलो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। वो सब मस्जिद में चले गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन मुरीद अब तक इस बात की सोच में थे, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे, वो आपके हर कौलो फैल को देखते थे। अगर आप कुछ ऐसा अमल करते जिनकी उन्हें समझ नहीं आती तो उनके जहनों में सवालात होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि खुद कुदरत की तरफ से इन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से इन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और आपको बार बार जलेबी वाले के पास भेजा गया, क्यों ऐसा हुआ? और इसका जवाब बहुत जल्द ही मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी जलेबी का टोकरा लिए हुए आपकी खिदमत में पहुंचा। जलेबी पेश करते हुए कहा हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी बन गई है। सब मुरीद वहीं बैठे थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की और आपसे दुआ करवाई और आपने कहा कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात बेहतर फरमा देगा और तुम्हारी दुकान
दुकान में बरकत होगी। यकीन जानिए उससे पहले कोई ग्राहक नहीं आता था, लेकिन आपके आने की बरकत से अब लोग वहाँ पर खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक ग्राहक आकर मुझसे जलेबी खरीदता है और कहते हैं कि इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने कहीं नहीं खाई। इसके खाने से ऐसा लगता है जैसे हम गौसे आजम के यहाँ का लंगर खा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। उसने कहा मेरे पास आकर लोग जलेबी खरीदते भी हैं और उसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि शहर के दूर दराज इलाकों में से भी आकर मेरे पास लोग जलेबी खरीदते हैं। कहा मेरे पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं होते थे हजरत। आज मेरे पास खुद इतने पैसे हैं कि मैं लोगों में खुद पैसे तकसीम करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। ये सब आपकी दुआ की बरकत से हुआ है। ये जलेबी आप खुद भी खाइए और मुरीदों को भी खिलाइए। उसके बाद उस शख्स ने आपके साथ मिलकर नमाज अदा की। उसके बाद आपने उस जलेबी को मस्जिद में बैठे हर शख्स के दरमियान तकसीम किया और सबने उन जलेबी को बहुत मजे लेकर खाया और कहने लगे सच में बहुत मजेदार है और इस तरह की जलेबी हमने आज तक नहीं खाई। फिर आपने फरमाया अल्लाह पाक ने हमें ये ताकत अता की है कि 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक कि हमारे पास आकर वो दुआ करें तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को सुनता है। उस बंदे का कहा टाला नहीं जाता, उसकी मुश्किल हल की जाती है। मुरीद अब समझ गए थे कि आप उन बच्चों की बात को क्यों मना नहीं कर रहे थे, क्यों आपने उन्हें इतनी अहमियत दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आपने ये सब किया था। वसीला वो बच्चे बने, लेकिन अल्लाह पाक ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात को नहीं टाला। सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि का मतलब बड़ा मुस्तजाब दावत है, यानी जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। उनकी दुआ को अल्लाह ताला सबसे पहले सुनता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को इसलिए गौसुल आजम कहा जाता है। आपके पास जो कोई अपनी फरियाद लेकर आता है, आप उसकी फरियाद सुनकर अल्लाह पाक तक पहुंचाते हैं। अल्लाह तक पहुंच तो वो राह राज भी जाता है, लेकिन कुछ बहुत प्यारे बंदे हैं अल्लाह के, जिनका नाम लेकर या जिनके वसीले से दुआ की जाए या खुद उन बुजुर्गों से ये बात कह दी जाए कि आप हमारे लिए बरकत की दुआ करें, रिज़्क़ की तरक्की की दुआ करें, तंगस्ती दूर हो जाए, आप हमारे लिए ये दुआ करें। अगर वो बुजुर्ग दुआ कर दें तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को जरूर सुनता है। गौसे आजम जो कि वलियों के सरदार है, इमामुल औलिया है, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के प्यारे से बेटे